Dear students, today we are going to start chapter 1 differentiation miscellaneous exercise 1. Now see question number 4. Differentiate the following with respect to x. First one, let y equals 2 tan inverse square root of 1 minus x upon 1 plus x. So for this type of the substitution, you know very well, put x equal to cos of 2 theta. Why we put cos of 2 theta? Because cos 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta formula and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta formula. So this is the reason we consider x equal to cos of 2 theta, and this implies that theta equal to half into cos inverse x. Therefore, y equal to 2 tan inverse square root of 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. So as per as formula, 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta. So therefore y equals to tan inverse square root of 2 sin square theta upon 2 cos square theta. Here 2 going by 2. So what is the remaining term here? Sin square theta upon cos square theta. But square root of sin square theta is sin theta and square root of cos square theta is cos theta. So sin theta upon cos theta equals tan theta. So therefore y equal to 2 tan inverse tan of theta. But here tan inverse and tan eliminated. So what we get here? We get y equal to 2 theta, which is equal to 2 into, what is value of theta? See here, theta equal to half cos inverse x. So therefore y equal to 2 into half cos inverse x. Here 2 going by 2. Therefore y equal to cos inverse x. Now differentiating with respect to x. So therefore derivative of y dy by dx equals, what is derivative of cos inverse x? You know the formula, cos inverse, derivative of cos inverse x equals minus 1 upon square root of 1 minus x square. So dy by dx equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. This is your final answer. So these questions are important for JEE and board exams and other competitive exams also. Now see question number 2. This is your question number 2. Let y equals sine square cot inverse square root of 1 plus x upon 1 minus x. So in this question, put x equal to cos 2 theta, and this implies that theta equal to half cos inverse x. इसको हम फाइंड कर लेते हैं, या आगे नीड हो या न हो यहाँ पर लिख लेना चाहिए जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो x इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा. तो लाइक एज प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम टर्म थे, सिर्फ उसमें ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर. तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या होता है. तो देयरफॉर y इक्वल्स साइन स्क्वायर cot inverse square root of 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos of 2 theta. So therefore y equal to sin square cot inverse 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So 2 going by 2, cos square theta upon sin square theta becomes cos theta upon sin theta after taking square root of these terms. But we know that cos theta upon sin theta is what? Now see in the next step. So y equals sin square cot inverse cot theta, because cos theta upon sin theta is cot theta. And here cot inverse cot eliminated. So we have remaining term sin square theta. Therefore y equal to sin square theta. But sin square theta has no exact substitution, but sin square theta by the same formula using cos 2 theta formula again. So sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta upon 2. देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. वाई? बिकॉज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा. अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से 2 गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. क्लियर? वाई वी राइट इन दिस टर्म? बिकॉज cos 2 theta has value x. So cos 2 theta is x. So therefore 1 minus
y equal to 1 minus x upon 2 because cos 2 theta equal to x we have considered it. So it is 1 minus x upon 2. Now differentiating with respect to x, therefore dy upon dx equals derivative of 1 is 0. So 0 minus 1 upon 2 that is minus 1 upon 2. क्योंकि 1/2 पहले ही कॉमन कर लोगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 0 minus 1 becomes minus 1 that is minus 1 upon 2 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 रिमेनिंग है, तो माइनस हाफ इज द आंसर. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आल्सो. तो ये टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते रहेंगे. तो डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करना है, जैसा कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर्स मैथ्स 2 या यू कैन से इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस के मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं यहाँ पर. अगर इनको अच्छे से कर लेते हो फिर मैथमेटिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, पार्ट 2 के लिए स्पेशली. और इसके साथ साथ मैं भी बोलूँगा कि फार्मूला अच्छे से बाहर रखो. फार्मूला बाहर रखोगे तो ही ये प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे से क्रैक कर सकते हो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x into 3 minus x upon 1 minus 3x. So we see that here root x, but here x and x. So these x can be converted in root x, means it is root x into root x 2 times. It is also root x into root x 2 times. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, पुट रूट x इक्वल टू tan थीटा, पुट रूट x इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स रूट x. नाउ y इक्वल्स tan इनवर्स, अब देखो रूट x इंटू 3 क्या होगा, 3 रूट x, और हमने रूट x को लिया, क्या लिया है, tan थीटा. यहाँ पर करते हैं 3 tan थीटा, और यहाँ देखो ये रूट x इंटू रूट x ऑलरेडी है एंड 1 मोर रूट x हियर, तो रूट x 3 टाइम्स हुआ, मीन्स रूट x इंटू रूट x इंटू रूट x, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा बिकम्स tan क्यूब थीटा एंटायर अपॉन 1 माइनस 3. अब देखो x है यहाँ पर, तो ये क्या है, रूट एक्स होल स्क्वायर, और यू कैन से रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा. क्लियर है यहाँ तक. सो y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. और ये होल ब्रैकेट किसका फॉर्मूला है, अगर ये अच्छे से बांट होगा तो कोई भी बता सकता है. यस, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज फार्मूला फॉर tan 3 थीटा. किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा. तो देयरफॉर y इक्वल्स tan इनवर्स tan 3 थीटा. नाउ tan इनवर्स, tan eliminated, right? So therefore y equal to 3 theta equals 3 tan inverse root x. So differentiating with respect to x. So therefore derivative of y is dy by dx equals 3 as it is, and derivative of tan inverse root x is 1 upon 1 plus root x whole square, but it is not x, so by chain rule into d by dx of root x. So this is equal to 3 into 1 upon 1 plus what is root x square, x, and derivative of root x 1 upon 2 root x. Now simplify, we get dy upon dx equals 3 upon 2, this 3 upon 2, ये 2 को पहले लिख लिए, 2 हो गया, और रूट x को भी पहले लिख लेते हैं, मीन्स 3 upon 2 root x into 1 plus x in the denominator. Therefore dy upon dx equals 3 upon 2 root x into 1 plus x. ये 1 plus x is out of root, सिर्फ root x रूट में है, ये ध्यान देना है यहाँ पर. तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. लेट y इक्वल्स cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2. तो ये टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी सब्स्टिट्यूट हियर, व्हाट इज द मेन सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. तो फॉर मेन सब्स्टिट्यूशन we see that it is root of 1 plus x, it is root of 1 minus x. So positive and negative both containing only cos formula. So we put x equal to cos of 2 theta. Therefore theta equal to half cos inverse x.
यहाँ तक तो इजीली क्लियर कर सकते हो कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x। अब ये देखते हैं कि ये इक्वेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या होता है। तो देयरफॉर y इक्वल्स कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड एंटायर अपॉन 2। अब क्या करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रूट 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर आएगा टोटल ये कॉस थीटा हो गया। तो रूट 2 इंटू कॉस थीटा, ये कॉस इनवर्स एज इट इज रखना है बाहर आउट ऑफ ब्रैकेट, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज रूट 2 इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करते हैं इसमें, देखो रूट 2 अपॉन 2 एंड माइनस रूट 2 अपॉन 2, दोनों में रूट 2 कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन 2। तो इसमें से ये 2 कंटेनिंग रूट 2 इंटू रूट 2, तो वन टाइम रूट 2 गेट कैंसल। तो देयर फोर वाई इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, तो पुट 1 बाई रूट 2 इक्वल्स कॉस ए इक्वल्स साइन ए, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है इसलिए कंटिन्यूस इक्वल लिखा है। अगर सपोज करो यहाँ पर कुछ 1 बाई रूट 2 यहाँ दूसरा नंबर होता तो यहाँ कॉमा करके अलग अलग सब्सटीट्यूशन करते थे, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट। और ये तभी कर सकते हो व्हेन दिस आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो रही है तो ही ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर मीन्स हाफ प्लस हाफ, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 बाई रूट 2 इक्वल्स कॉस ए इक्वल टू साइन। और ये रूल और जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ पर हमने वापस वहाँ एक्सप्लेन किया था, वहाँ अदर अदर नंबर्स भी थे और ये कुछ सब्स्टिट्यूशन सेम भी था वहाँ पर। तो हमारे प्रीवियस जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको अगर रेफर करोगे तो वहाँ पर ये रूल्स डिटेल्स में मिल जाएगा और फुल एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। Therefore, y equal to cos inverse. Now 1 by root 2 is what? Cos A. Cos theta as it is minus 1 by root 2 sin A sin theta as it is. So we see that it is cos A cos theta minus sin A sin theta. But cos A cos theta minus sin A sin theta is the formula for cos theta plus A or A plus theta. चाहे जो भी लिखो पार्ट 2 के केस में। तो therefore y equal to cos inverse cos theta plus A. नाउ कॉस इनवर्स एंड कॉस एलिमिनेटेड। तो मेन इसमें इस क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद आता है फार्मूला। तो देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस ए। नाउ कॉस इनवर्स एंड कॉस एलिमिनेटेड, देयरफॉर y इक्वल्स थीटा प्लस ए। तो देयरफॉर y इक्वल्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा। अब फिर से हमें वापस पीछे जाना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने थीटा को क्या एज्यूम किया था, थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू हाफ फॉर थीटा ओनली हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रखो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स हाफ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ a इज 0। अगर a को भी थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर tan थीटा आएगा, लेकिन सॉरी tan a मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो tan ऑफ कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। तो अगर उसको लिख करके डेरिवेटिव निकालोगे तो भी 0 ही होगा बिकॉज पाई बाई 4 इज कांस्टेंट। तो इससे अच्छा है कि इस डेरिवेटिव के केस में हम लोग a को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ a इज 0। Therefore dy by dx equals minus 1 upon 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 0 यहाँ पर मीनिंगलेस हो गया तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हाफ इंटू दिस हो गया और आंसर मिला है, राइट।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वन, लेट y इक्वल tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 7x upon 1 minus 10x square. So dear students, attention here. In your textbook it is given that cot inverse 1 minus 10x square upon 7x. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल कर दिया और उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है कि cot इनवर्स 1 by x इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि हम जब इसके एंगल को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ट्रिगो रेशियो क्या होता है, यहाँ tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स अपने रिलेटिव इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोसेक साइन में कन्वर्ट होगा, कॉट tan के लिए है और सेक कॉस के लिए, ठीक है, इनवर्स के केस में। तो ये क्वेश्चन यहाँ न लिख करके हमने कम्प्लीटली डायरेक्टली यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, tan इनवर्स 7x अपॉन 1 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, एंड रीजन इज हियर। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इसको किस फॉर्म में हम लोग ब्रेक करें। तो x यहाँ पर है और यह 1 प्लस 6x स्क्वायर। नाउ सी वेरी केयरफुली, देखो 6x स्क्वायर हैज फैक्टर्स, क्या है इसके फैक्टर, 3x इंटू 2x। तो सबसे पहले 3x इंटू 2x जैसे ओरली इसको फैक्टराइज कर लेते हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो 6x स्क्वायर को जैसे ही ब्रेक करते हो 3x इंटू 2x, तो सबसे पहले चेक करो क्या उसका डिफरेंस, जैसे यहाँ नीचे प्लस दिया है तो उसका डिफरेंस ऊपर है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये डिफरेंस ऊपर है अगर तो ही ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंसेस में क्या आएगा, मीन्स x को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x और यह है 3x इंटू 2x, तो चलो ठीक है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन बराबर हो गया। प्लस tan इनवर्स 7x है यहाँ और यहाँ 10x स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं और यह है 5x इंटू 2x और यहाँ भी माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ ऊपर प्लस होना चाहिए, तो ये 5x प्लस 2x हो जाएगा, मीन्स सब्स्टिट्यूशन ओके है, राइट। नाउ y कैन बी रिटन एज, मीन्स y इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस 2x, देखो फाइनली x ही बचेगा लेकिन ये अपना ब्रेक हो गया, 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 2x प्लस tan इनवर्स 7x कैन बी रिटन एज 5x प्लस 2x and 10x square can be written as 5x into 2x, here 1 minus 5x into 2x। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि फार्मूला किसके लिए है, कि tan इनवर्स, अब यहाँ देखो फार्मूला tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल्स व्हाट, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, एंड tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी फॉर द सेकंड पार्ट इक्वल्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो ये दोनों ही फार्मूले यहाँ पर हमने दे दिए हैं, अगर किसी को नहीं बांट है तो यहाँ से बांट कर सकते हो, लिख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ सी, therefore y equals tan inverse 3x minus tan inverse 2x for the first part plus as it is tan inverse 5x plus tan inverse 2x, ये हो गया फार्मूला। अकॉर्डिंग टू these two formula it can be written like this। तो अब ये टर्म यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद देखो माइनस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 2x यहाँ भी कट कर सकते थे, या इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी यहाँ कट कर सकते हो, दोनों कट ही होने वाले हैं, चाहे वहाँ से कट करो या यहाँ से कट करो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x यहाँ से इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x 1 upon 1 plus 4x square into 2। Now this is cancelled here, ठीक है। तो therefore dy by dx equals 3 upon 1 plus 9x square plus 5 upon 1 plus 25x square। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन का है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है 6th, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन है और कई फार्मूले एक साथ यूज भी किए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, लेट y इक्वल्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट, एक एंटायर स्क्वायर रूट है जो पूरे पार्ट के लिए है, tan इनवर्स के बाद एक स्क्वायर रूट यहाँ लगा हुआ है जो पूरे पार्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहीं तक रूट है,
प्लस एक्स इज आउट ऑफ रूट, ये क्लियर कर लेना है सबको पहले, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज आउट ऑफ रूट। तो ये दोनों एक्स आउट ऑफ रूट है, ये दोनों रूट के अंदर है और सभी रूट के अंदर यहाँ से हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये सेपरेटली भी स्क्वायर रूट में है और एक एंटायर स्क्वायर रूट है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। और सबसे मेन बात कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन क्या होना चाहिए कि व्हाट शुड वी पुट फॉर द न्यूमरेटर एंड फॉर डिनोमिनेटर, because it is root of this plus x and this is root of 1 plus x square minus x containing, so we put x equal to tan theta। क्या पुट करना चाहिए हमें, x equal to tan theta। ये कैसे मालूम पड़ेगा, बहुत से स्टूडेंट के अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि मालूम कैसे पड़ेगा कि हमें क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो देखो हमें क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए, हमें यहाँ से पकड़ना चाहिए कि इफ़ यू पुट x इक्वल टू tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ tan या cot दो ही ऐसे टर्म हैं जो 1 प्लस के साथ हमारे फार्मूले देते हैं, बाकी साइन का वो 1 माइनस के साथ देंगे, और सेक कोसेक लेते हैं तो सेक और देन -1 सेक स्क्वायर एक्स -1 ऐसा आ जाएगा। तो वो फॉर्म में नहीं है, साइन कॉस का भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बचता क्या है, tan और cot। तो tan थीटा और cot थीटा में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर cot थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो तो लास्ट में अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आउट ऑफ ब्रैकेट क्या है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ओनली। तो इसके लिए हमें बेस्ट सब्स्टिट्यूशन इज x इक्वल टू tan थीटा, सो वी पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो चलो अभी देखते हैं कि पुट करने के बाद क्या मिलेगा। तो देयरफॉर y इक्वल्स tan इनवर्स एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब एंटायर स्क्वायर रूट यहाँ पर है, यहाँ तक लगा मतलब ये स्क्वायर रूट फुल के लिए है। कर्ली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हियर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ x के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। ओनली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट tan इनवर्स स्क्वायर रूट देन rectangular bracket square root of 1 plus tan square theta plus tan theta upon square root of 1 plus tan square theta minus tan theta and the rectangular bracket closed. Now it is equal to tan inverse square root of, what is 1 plus tan square theta? Because you know identity, 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So square root of sec square theta is sec theta plus tan theta as it is. Here also square root of sec square theta sec theta minus tan theta. So we get sec theta plus tan theta upon sec theta minus tan theta। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इसको 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos theta minus sin theta upon cos theta। तो we see that denominator is cos theta in the numerator as well as in the denominator, क्योंकि अभी कैसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों में ही डिनोमिनेटर कॉस कॉस आता है, तो डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड। तो देयरफॉर y इक्वल्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग हो गया, लेकिन अभी ये ध्यान देना कि स्क्वायर रूट अभी तक ये है फॉर होल टर्म, क्योंकि देखो ब्रैकेट यहाँ से लगा मतलब स्क्वायर रूट ये फुल टर्म के लिए लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज द फार्मूला cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सपैंड करोगे ये टर्म मिलेगा, करेक्ट। So dear students, now see y equal to tan inverse square root of cos theta upon 2 plus sin theta upon 2 whole square. This is formula for 1 plus sin theta upon
cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये थोड़ा अपॉन 2 यहाँ पर नहीं लिखा गया था, मिस्टेक हो गई, तो सॉरी, मैंने इसको अभी जस्ट करेक्शन कर दिया है। आप लोग यहाँ अपॉन टू करेक्ट कर लेंगे। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई 2, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ओनली थीटा अपॉन 2 लिखना है सभी जगह। So therefore y equal to tan inverse 1 plus tan theta upon 2 upon 1 minus tan theta upon 2. So dividing throughout by cos theta by 2 in the numerator and cos theta by 2 in the denominator. So cos theta by 2 upon cos theta by 2 1 and sin upon cos tan, cos theta by 2 upon cos theta by 2 1 and sin theta by 2 upon cos theta by 2 is tan theta upon 2. So this is the formula for tan. This is equal to tan inverse and this is the formula for tan of pi by 4 plus theta upon 2. ये फार्मूला हो गया कि tan a प्लस बी ईयर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan 45 के लिए ऐसा होता है, नॉट tan a प्लस बी। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा अपॉन 2, ये इसका फार्मूला यहाँ पर है, ठीक। नाउ इट इज इक्वल टू y इक्वल्स पाई अपॉन 4 प्लस हाफ tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स एंड tan एलिमिनेटेड, क्या बचता है यहाँ पर, पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। तो पाई अपॉन 4 एज इट इज प्लस हाफ, ये थीटा अपॉन 2 का हाफ, ये 2 यहाँ पर एज हाफ आउट कर लो, एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx equal to derivative of pi by 4 is 0, half as it is derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Therefore dy by dx equals half into 1 upon 1 plus x square. So this question is now completed. This question means question number 4 is completed. Now remaining questions in the next lecture. Thank you.